Good evening, students. Namo Namaha. Yes, very good evening to all of you and Namo Namaha. Susayankalah. Okay, so as you know, we are in lesson number 2, Kaha Kakim, and today we have to complete the lesson 2. Last part just we have to deal today. As of now, we have completed Pullinga words, yani ki masculine words ending in aha or visarga. Then we have completed some words like Eshah, Sah, Kah for Pullingam. By now you know the meaning of all of them and also the use of all these pronouns. After that we have done Strilinga words, Strilingi words, feminine words. Feminine words can be ended in A as well as some words end in E also, like Duradhvani, Rashmi, Ghati, Kupi, Suchi, Kartari, etc. In Strilinga, we have three pronouns, Esha, Sa and Ka. जैसे एषः सः कः in पुल्लिंगम, वैसे एषा, सा and ka, these three pronouns are in Strilingam. Now we have to move ahead. Last time we have solved all the questions based on Strilingam. I think यहाँ तक complete हो गया था. Just let me know in the chat box ये question हुआ है कि नहीं. These pictures are given and you have to frame one sentence. Yes, it is done. So sentences are like Balika hasati, Mahila chalati, Shikshika vadati, Pipilika khadati. Now, we're going to start with Napunsakalingam. Today we are going to start with Napunsakalingam. Napunsakalingam means neuter gender. तो basically हम सब objects के नाम देखने वाले हैं यहाँ पे. और ऑल द वर्ड्स आर इन न्यूटर जेंडर. अभी इसमें एक कॉमन चीज है, जैसे कि हमने देखा पुल्लिंगम में ऑल द वर्ड्स आर एंडिंग इन अह और विसर्ग. स्त्रीलिंगम में वर्ड्स आर एंडिंग इन आ एंड ई. लाइकवाइज इन नपुंसकलिंगम, सी मैं कैसे प्रोनाउंस कर रही हूँ वो वर्ड को अच्छे से देखो, नॉट नपुंसकलिंगम. आई वांट माय ईच एंड एवरी स्टूडेंट विल प्रोनाउंस द वर्ड एज नपुंसकलिंगम. प के ऊपर एक अनुस्वार है तो आप बोलोगे नपुंसकलिंगम. नेक्स्ट स्लाइड पे उसका स्पेलिंग आपको दिखेगा. So in Napunsakalingam, neuter gender में all words end in म, incomplete म, हलंत म में end होते हैं. So here the first word is कमलम. Pictures तो आपको दिख रहे हैं तो meaning बहुत ही simple है. Then we have पर्णम, पर्णम. After that we have पुस्तकम, पुस्तकम. Next is गणकयंत्रम, calculator, गणकयंत्रम. नेक्स्ट स्टूडेंट्स सेकेंड लाइन में देखना है, रो में देखना है आपको, वातायनम, विंडो, वातायनम. ये वर्ड आपको चित्रपद कोश में भी था. देन वी हैव सोप. सोप के लिए वर्ड है फेनकम, फेनकम, फेनकम. अगर सोप जो है वो हमें क्लोथ्स के लिए यूज करना है, वॉशिंग क्लोथ्स, देन हम बोलेंगे वस्त्र फेनकम. नॉर्मल सोप बॉडी वॉश के लिए तो फेनकम. एंड if we want a soap for washing clothes, then it is vastra dash fenakam. After that the last word is karavastram. Kara means hand and vastra means rumal. So karavastram. Chalo, quickly write down all the words of Napunsakalingam. ऊपर लिखना न्यूटर जेंडर and write down all the words. All words should end in halantama. Also write down the meaning because some words are new for you. Last 5 seconds to complete this particular slide.
कमलम, पर्णम, पुस्तकम, गणकयंत्रम, वातायनम, फेनकम, करवस्त्रम. Okay, now we'll practice it orally. So who would like to read all the words with the correct pronunciation? Yes, Priyal. Yes, teacher. Yes, read all the words. Kamalam, Parnam, Pustakam, Ganakayantram, Vatayanam, Phenakam, Karavastram. Very nice. Thank you. Welcome. Okay, let's give chance to Krishna. Yes, ma'am. Can I read? Yes. Kamalam, Parnam, Pustakam, Ganakayantram, Vatayanam, Fenakam, Karavastram. Very good. Thank you, ma'am. Yes, Ayush. Ayush. Vedika. Vedika from DN Nagar. Hello. Yes, Vedika. Yeah. Kamalam, Paranam, Pustakam, Ganakayantram, Vatayanam, Fenakam, Karavastram. Very nice, Vedika. Thank you. Yes, Ayush. Ayush Pednekar. Ayush, am I audible to you? Okay, Ayush is not audible. Let's give chance to Deepika from Saidam. Yes, ma'am. Yes, read all the words. Yes, ma'am. Kalamam, Parnamam, Kamalam. Kamalamam. Ma'am, can you read the one time again? All the Yes, yes, words. sure. See, you have to read like Kamalam, Paranam, Parnam, Pustakam, Pustakam, Ganakayantram, Ganakayantram, Vatayanam, Vatayanam, Phenakam, Fenakam, Karavastram. Karakvastram. Now try by your own. Yes, ma'am. Kamalam, Parnamam, Pustakam, Ganakayantram, Vatayama, Yanam, Fela, what, ma'am? Vatayanam, Vatayanam, Fenakam, then Karakia, Vastram, Karavastram. hello ma'am, Yes, Karavastram. Last word is Karavastram. Karavastram. Okay, very good. Thank you. Karavastram. Thank you, ma'am. Yes. So Deepika, practice it again and again. Okay, so now we'll move ahead. Now, ये जो म अभी अभी हमने सीखा है, एंडिंग में सब जगह पे म आ रहा है. अभी ऐसे वर्ड्स जब भी स्टार्ट हो जाएंगे तो देयर आर सम रूल्स टू फॉलो व्हाइल यूजिंग दीज वर्ड्स इन सेंटेंस. तो वही यहाँ पे है यूज ऑफ म. ओके, तो पूरा ध्यान इधर यूज ऑफ म ऊपर लिखा हुआ है, वो म गलती से नीचे आ गया, एंटर हो गया. We have to focus on the first sentence. Venarajah is name of king. Rajadharmasya of royal duties. Palanam means following the royal duties. Nakarot ऐसा एक word है. Nakarot मतलब he didn't follow any kind of a duties. Okay, he do not follow some duties. So अभी यहाँ पे students you have to observe the word palanam. Palanam जब हम individual word लिखेंगे तो actually it is ending in हलंत म, but पालनम के बाद देखो न आ रहा है, and students न is a consonant, न is व्यंजन. So क ख ग घ से लेकर श स ह ळ च ञ तक कोई भी consonant अगर आ रहा है after हलंत म, then you have to write down it as अनुस्वार. तब न बन जाता है अनुस्वार.
अदरवाइज नीचे देखो एग्जाम्पल सेम सेंटेंस लिखा हुआ है सेकेंड वाला, बट उसके बाद नाकरोत नहीं है, उसके बाद अकरोत है, अ आ रहा है, अ इज अ स्वर, सो वी हैव टू कीप दैट म एज इट इज, वी हैव टू कीप द म एज इट इज। देन और एक एग्जाम्पल थर्ड मैंने दिया हुआ है, तत्र यानम आगतम। अभी देखो आगतम वर्ड को पहले ऑब्जर्व करो, एंडिंग वाला जो है, तो अगर ये जो हलंत म है फुल स्टॉप देने के पहले आ रहा है एंड ऑफ द सेंटेंस में, तो भी हमें एज इट इज लिखना है। एंड ऑल्सो इफ इट इज बिफोर स्वर, देन ऑल्सो यू हैव टू राइट डाउन एज इट इज। एंड लास्ट में एक छोटा सा वर्ड दिया हुआ है विच इज अ नोन वर्ड फॉर यू, दैट इज आम्रम। तो कोई इंडिविजुअल वर्ड हम लिख रहे हैं तो भी उसको हलंत म में लिखना है। इफ हलंत म इज एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, देन ऑल्सो कीप एज इट इज। देन इफ हलंत म इज प्रिसीडेड or is before swar, then also you have to keep as it is. And also students, last and important rule is, if halantama is followed by any व्यंजन from क ख से लेकर न्य तक, अगर व्यंजन आ रहा है उसके बाद आफ्टर द हलंतम, देन हलंतम को रब करके वी हैव टू पुट अनुस्वार ऑन द लास्ट कॉन्सोनेंट। जैसे कि आप देख रहे हो पहला पालनम जो है उसमें म को हमने रब कर दिया है, डिलीट कर दिया है, इंस्टेड ऑफ म, इन प्लेस ऑफ म वी हैव यूज दैट पर्टिकुलर अनुस्वार ऑन न। सो आई होप यहाँ तक क्लियर है। अगर किसी को डाउट है म के यूज में तो क्विकली रेज योर हैंड और आस्क मी इन चैट बॉक्स, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न हमें कहाँ पे कैसे यूज करना है। ओके, यस कृष्णा, डू यू हैव एनी डाउट? ओके, कृष्णा इज नॉट आंसरिंग, मीन्स आई थिंक नो डाउट। फिर से एक बार लास्ट टाइम रिपीट कर रही हूँ, जिन्होंने नहीं सुना है फिर से सुनना। एवरीवेयर आपको हलंत म जो है हलंत ही लिखना है, उसके नीचे एक लाइन बनाना है। बट जब भी ऐसे वर्ड्स जो है उनके बाद आपको न जैसे कोई भी कॉन्सोनेंट दिखेगा, क ख ग घ से लेकर न्य तक कोई भी कॉन्सोनेंट अगर आ रहा है आफ्टर हलंत म, तो आम्रम के बाद, कमलम के बाद, मतलब ये जितने भी वर्ड्स सभी हमने सीखे, इसके बाद अगर सेंटेंस में व्यंजन आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो ये म को हमें रब करना है और लास्ट लेटर के ऊपर अनुस्वर देना है। और अगर इसके बाद स्वर आ रहा है तो कीप दिस म एज इट इज। अगर ये जो वर्ड है कमलम, गणकयंत्रम, पुस्तकम, फेनकम, वो एंड में आ रहा है, सेंटेंस के एंड में आ रहा है, तो भी कीप म एज इट इज। एंड ऑल्सो इफ यू आर राइटिंग द वर्ड इंडिविजुअली, आप पिक्चर का नाम लिख रहे हो तो भी आपको म एज इट इज लिखना है। तो स्पेशली ये जो हलंतम है सब जगह पे एवरीवेयर इट इज सेम, सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस हो जाता है, जब भी it is followed by consonant you have to change it as अनुस्वार, उसको बिंदी बना दो, डॉट बना दो। चलो आई होप ये एक्सप्लेनेशन क्लियर है। लेट्स मूव अहेड एंड देखते हैं कि कैसे यूज करना है। तो अभी ये सब रूल्स यहाँ पे अप्लाई करो। यहाँ पे देखो एक बॉय है और हमें वो कुछ ऑब्जेक्ट के बारे में गाइड कर रहा है, तो वो पहला सेंटेंस बोलता है एतत् फलम, एतत् फलम। बॉय जो है फलम यानी कि फ्रूट से बहुत ही नजदीक खड़ा है, he is very nearby to the fruit and hence boy is saying etat phalam, this is fruit। और here is a fruit, here बहुत ही नजदीक है, this is fruit और here is a fruit। एतत् पतति, वो फ्रूट की कुछ एक्शन बता रहा है, फ्रूट क्या हो रहा है, फ्रूट गिर रहा है, पतति मीन्स फॉलिंग, falls, so fruit falls from the tree। then वो हमें क्वेश्चन पूछ रहा है किम पतति, what is falling from the tree, and we have to give answer एतत् फलम पतति, this fruit is falling or here is a fruit which is falling। so I hope जैसे कि हमने सीखा वहां पे एषः और स्त्रीलिंगम में एषा, वैसे न्यूटर जेंडर में the word is एतत् for the objects which are nearby। तो एतत् फलम। चलो लेट्स मूव अहेड। एतत् यानम, यानम यानी कि कार, तो कार भी देखो पार्क है वहां पे, या फिर इनफैक्ट कार जो है बीच रोड में खड़ी है, एंड वहां पे बच्चा जो है, वो स्टूडेंट जो है, वो बहुत ही नजदीक खड़ा है, नियर बाय टू द कार, एंड हेंस ही इज सेइंग एतत् यानम, दिस इज कार और हियर इज अ कार। एतत् तिष्ठति, दिस कार इज स्टैंडिंग और हियर इज अ कार व्हिच इज स्टैंडिंग। किम तिष्ठति, व्हाट इज स्टैंडिंग हियर, एतत् यानम तिष्ठति, this car is standing। so एतत् basically used for
the neuter gender words which are very nearby to us, जो हमारे बहुत ही नजदीक है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स के लिए नपुंसक लिंग वर्ड के लिए हम लोग यूज करेंगे एतत्। तो अभी स्टूडेंट्स बहुत इजी हो गया, इफ यू नो द वर्ड एतत् तो हमें पता है कि इफ द ऑब्जेक्ट इज फार अवे देन वी हैव टू यूज तत्। तो यहाँ पे देखो बॉय जो है he is showing us the beautiful lotus and lotus is called as kamalam, अभी अभी हमने सीखा है। तो tat kamalam, that is lotus, or there is lotus, थोड़ा सा दूर है इसलिए that is lotus। tat vikasati, tat vikasati, तो विकासती हुआ है वहां पे, आपको लिखना है विकसती, नॉट विकासती। टेक्स्ट बुक में चेक करो एक बार, द स्पेलिंग इज विकसती नॉट विकासती। तत् विकसती, विकसती मतलब ब्लूम्स। लोटस आपको दिख रहा है खिला हुआ है लोटस, तो इसीलिए ब्लूमिंग लोटस, दैट लोटस इज ब्लूमिंग और दैट लोटस ब्लूम्स। किम विकसती, तो हम आंसर देंगे तत् कमलम विकसती। अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑब्जर्व करो, किम या कमलम ऐसे जो वर्ड्स है उसमें अनुस्वार दिया हुआ है स्टूडेंट्स, क्यों? बिकॉज दैट किम और कमलम वर्ड्स आर फॉलोड बाय व्यंजन व से फॉलो हो रहे हैं। वहां पे अगर अ आ ई स्वर आता तो हम म लिखते, बट दीज वर्ड्स आर फॉलोड बाय व विच इज व्यंजन एंड हेंस हमें अनुस्वार लिखना पड़ा। तो इसीलिए कमलम का स्पेलिंग हमने जब पिक्चर में देखा था तब अलग था, और अभी यहाँ पे जब देख रहे हैं तब वो बिंदी के साथ है, अनुस्वार के साथ है। चलो लेट्स मूव अहेड, वी हैव वन मोर एग्जांपल, तत् विमानम। ओके, सो प्लेन है, ऊपर आकाश में, दूर है हमसे बहुत, इसीलिए तत् विमानम, दैट इज प्लेन, और देयर इज अ प्लेन इन द स्काई। तत् भ्रमति, बाय नाउ यू नो द मीनिंग ऑफ भ्रमति, क्विकली टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भ्रमति। वॉन्डरिंग, मूविंग, वेरी गुड। फ्लाइंग नहीं बोलेंगे हम लोग, फ्लाई के लिए हम और एक वर्ब सीखने वाले, थोड़ा डिफिकल्ट है इसीलिए एक दो लेसन के बाद सीखेंगे हम लोग। अभी हम लोग भ्रमति का मीनिंग लेंगे, वॉन्डरिंग, रोमिंग और मूविंग। वॉन्डरिंग, रोमिंग और मूविंग। यस, यू हैव आंसर्ड इट करेक्टली, मेनी ऑफ यू हैव आंसर्ड इट करेक्टली, थैंक यू सो मच। सो क्वेश्चन है किम भ्रमति, व्हाट इज रोमिंग हियर एंड देयर और व्हाट इज वॉन्डरिंग हियर एंड देयर इन द स्काई। हमारा आंसर है तत् विमानम भ्रमति। गलती से भी हम कभी भी एतत् विमानम नहीं बोलेंगे जब तक हम फ्लाइट के लिए नहीं जा रहे, ओके, एयरपोर्ट पे नहीं जा रहे, तब तक हम लोग एतत् वर्ड प्लेन के लिए यूज नहीं कर सकते, हमें तत् ही यूज करना पड़ेगा। इफ वी आर टेकिंग अ फ्लाइट एंड वी आर एट एयरपोर्ट वी कैन यूज द वर्ड एतत्। सो आई होप आपको 3 वर्ड्स क्लियर है। तो दीज 3 pronouns for नपुंसकलिंगम are एतत्, तत् and किम, all are सर्वनाम, सब सर्वनाम है, प्रोनाउंस है, एतत्, तत् एंड किम। नाउ क्विकली टेल मी, एंड देखो नपुंसकलिंगम का स्पेलिंग भी है राइट साइड में, राइट डाउन दिस स्पेलिंग एंड आल्सो 3 वर्ड्स। वो सब जो सेंटेंस है वो लिखने की जरूरत नहीं है, ऑल दैट सेंटेंसेस आर देयर इन योर टेक्स्ट बुक, जस्ट राइट डाउन दीज 3 वर्ड्स विथ मीनिंग, and students also write down the spelling of Napunsakalingam, and please don't pronounce it as Napusakalingam. It is not Napusaka, it is Napunsaka. मराठी, हिंदी और संस्कृत तीनों में भी स्पेलिंग जो है और प्रोनाउंसिएशन जो है वो सेम है फॉर न्यूटर जेंडर, इट इज नपुंसकलिंगम। बहुत बार हमने गलत सुना रहेगा, बट द करेक्ट स्पेलिंग इज नपुंसकलिंगम। संस्कृत वाले स्टूडेंट्स को ये एटलीस्ट पता होना चाहिए। ओके, सो हु वुड लाइक टू टेल मी द मीनिंग ऑफ एतत्, तत् एंड किम? मीनिंग या फिर जस्ट द यूज ऑफ एतत्, तत् एंड किम? ओके, लेट्स गिव चांस टू हितेश, हितेश फ्रॉम विले पाडले। Hello, ma'am. हेलो हितेश, Yes, ma'am. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एतत्? Ma'am, meaning of etat is the thing or someone is close to me, Very good. which is used Correct. for neuter gender, Napunsakalingam. Right, correct. Then tat, And tat is used for far away, to point out far away thing for Napunsakalingam. wow, fantastic. And last kim,
Kim is used to ask question for Napusakalingam. Yes, for Napunsakalingam. Very good. Thank you so much, Hitesh. Welcome. So I hope कि आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गया है फॉर ऑल द जेंडर स्टूडेंट्स. देखो अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो प्रीवियस आई थिंक 2 या 3 लेक्चर से हम लोग लेसन नंबर 2 ही सीख रहे हैं. व्हाई इतना टाइम क्यों लग रहा है या फिर इतना बड़ा लेसन क्यों दिया हुआ है? तो सिंपली स्टूडेंट्स अगर लेसन 2 आपको आ गया ना तो समझो लेसन 5 तक सब कुछ आ गया. लेसन 2 इज बेस्ड टिल लेसन 5. लेसन 5 तक सब कुछ सीखने के लिए लेसन 2 इज योर बेस. तो अगर ये अच्छे से समझ में आ गया है स्त्रीलिंगम, पुल्लिंगम एंड नपुंसकलिंगम एंड ऑल्सो 3 सर्वनामस एंड द मीनिंग ऑफ सर्वनामस, यूज ऑफ दीज सर्वनामस, तो आपको ऑलमोस्ट लेसन नंबर 5 तक सब कुछ इजी लगने वाला है. तो अभी भी मैं पूछ रही हूँ, डू यू हैव एनी काइंड ऑफ अ डाउट इन पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम और नपुंसकलिंगम? क्विकली आस्क, otherwise we'll move ahead. We have to solve some exercises based on the whole lesson now. अभी सिर्फ एक एक लिंग के ऊपर नहीं, फुल सब लिंग को एक साथ मिलाकर हम एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं. वाह, फैंटास्टिक, नो डाउट. सो हियर वी हैव अ क्वेश्चन टू सॉल्व. क्रियापदम योजयित्वा छात्राः वाक्यानि वदन्ति. अभी थोड़ा टास्क जो है वो चेंज हो गया है. अभी तक हम लोग वर्ड्स यूज कर रहे थे, अभी हमें क्रियापद यूज करने. वर्ड्स आर ऑलरेडी गिवन, नाउन्स आर गिवन, सिर्फ एक एक वर्ब आपको यूज करना है. तो पहला वर्ड है व्यजनम. व्यजनम मीन्स फैन. अपत्यम, अपत्यम मीन्स बेबी, न्यू बॉर्न बेबी. जलम मीन्स वाटर एंड रेलयानम मीन्स, yes, of course, the railway. So I want answer for the first. व्यजनम. व्यजनम क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है? Yes, प्रियाल. टीचर ब्रह्मति. वेरी गुड. व्यजनम भ्रमति. थैंक यू सो मच. वेलकम. तो अभी तक आपने जितने भी वर्ड्स सीखे हैं, एक्शंस, वर्ब्स सीखे हैं, वो सब आपको यूज करने हैं. नेक्स्ट है अपत्यम. यस, अथर्व फ्रॉम विक्रोली. Yes, ma'am. I am audible. यस, यू आर ऑडिबल. अपत्यम. Ma'am, Hasati. वेरी गुड. अपत्यम हसति. थैंक यू सो मच. Thank you, ma'am. So Atharva has recognized the picture correctly. Let's give chance to Chandan. Yes, Chandan from Ville Parle. Ma'am, Jalam is Vahati. Wow, fantastic. Jalam Vahati. Thank you so much, Chandan. Thank you, ma'am. ये पिक्चर थोड़ा सा डिफिकल्ट था. वहती आपने नया नया सीखा हुआ है. Okay, and the last is very simple one. Relayanam. Would like to answer? Yes, let's give chance to Deven from Saidham. Hello. Yes, Deven. Relayanam. Dhavati. Very good. Relayanam Dhavati. Thank you so much. तो स्टूडेंट्स, अभी ये जो वर्ड है रेलयानम, उसके लिए आप धावती, चलती, गच्छति, आगच्छति कुछ भी यूज कर सकते हो. ट्रेन इज कमिंग, गोइंग और स्टैंडिंग, तिष्ठति भी यूज कर सकते हो, चलती यूज कर सकते हो, एज वेल एज चल रही है, या फिर धावती इज ऑल्सो परफेक्ट. तो आपके आंसर्स कुछ इस तरह से होंगे. व्यजनम भ्रमति, अपत्यम हसति, जलम वहति एंड रेलयानम आगच्छति. But students, now here you have to find out the mistake. यहाँ पे जानबूझकर एक मिस्टेक की गई है. To check your knowledge, to check the knowledge of म and अनुस्वार. So quickly tell me, where is that mistake? एक या दो मिस्टेक्स है, आपको क्विकली फाइंड आउट करने. सब स्पेलिंग्स करेक्ट है, बट छोटे से मिस्टेक्स है उसमें. Okay, let's give chance to Chandan once again. Yes, Chandan. Ma'am, there is a dot. We have to put more. Yes, तो वो डॉट कहाँ पे देना है और कौन सा सेंटेंस रॉन्ग है, आपको क्या लग रहा है? It is not wrong, but we have to put more and remove that dot. कहाँ पे? इन सेंटेंस 1, 2, 3, 4 किधर? In sentence 2. In sentence 2 we have to use हलंत म instead of dot. Okay, ठीक है. Thank you, Chandan.
थैंक यू मैम। तो स्टूडेंट्स देखो, चंदन बोल रहा है कि अपत्यम जो वर्ड है वो रॉन्ग लिखा हुआ है. इट शुड नॉट बी रिटन विथ हलंतम, इट शुड बी रिटन विथ म, इट शुड नॉट बी रिटन विथ अनुस्वार, इट शुड बी रिटन विथ हलंतम. ओ सो यस, बहुत लोग यहाँ पे रिप्लाई करें नो मैम दिस इज अ रॉन्ग आंसर. यस, तो चंदन थोड़ा सा आंसर रॉन्ग है. सेकेंड सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, अपत्यम हसती, बिकॉज अपत्यम के बाद ह आ रहा है, ह इज कॉन्सोनेंट, तो हमें बिंदी यूज करनी है, अनुस्वार यूज करना है. अभी ये आपके लिए हिंट था कि एक सेंटेंस सेकंड सेंटेंस इज करेक्ट, सो क्विकली टेल मी विच सेंटेंस इज रॉन्ग. अभी रिमेनिंग 3 में से कौन सा सेंटेंस रॉन्ग है? Yes, so here is the slide. Okay, let's give chance to Aryan from Villeparle East. Aryan. Hitesh. Hello, ma'am. Yes, Hitesh. Ma'am, there is a mistake in fourth sentence. It should be really yanam, and on the top of N, anuswar should be there, because after N, vowel is there. Okay, ठीक है. Thank you so much, Hitesh. Welcome, ma'am. Again, बहुत दुख से कहना पड़ रहा है कि हितेश का भी आंसर रॉन्ग है. The last sentence is also correct. Relayanam agachati. There we have to keep halanta ma as it is, Hitesh, because the ma is followed by a. A is a swar. स्टूडेंट्स हमेशा याद रखना, स्वर है तो म एज इट इज रहेगा, कॉन्सोनेंट है तो म का बिंदी अनुस्वार बन जाएगा. तो अभी रिमेनिंग 2 sentences, first and third. Yes, Deven is replying correctly now. First and third sentences, both the sentences are wrong. You have to put anuswar on न. व्यंजनम and जलम में आपको अनुस्वार यूज करना है, न कि आपको हलंत म यूज करना है. सो क्विकली वहां पे करेक्शन करके लो. व्यंजनम में न के ऊपर अनुस्वार ऐड करो, म को कट कर दो. अपत्यम इज करेक्ट. जलम में ल के ऊपर अनुस्वार चाहिए, म को डिलीट करो. रेलयानम इज एज इट इज. Relayanam agachati. If ma is followed by swar, it remains as it is. If ma is followed by consonant vyanjan, then we have to make or change it or modify it as bindi or anuswar. Yes, Priyal, do you have any doubt? No, ma'am. Okay. Atharva, do you have any doubt? Atharva from Ma'am, Victoria. I was saying that only, but first he was told. Okay. Thank you so much, Atharva. तो फर्स्ट एंड थर्ड सेंटेंस को करेक्ट करके ले लीजिए. ओके, विल मूव अहेड नाउ. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अभी आपको तीनों जेंडर का, लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग एंड नपुंसकलिंगम का अंडरस्टैंडिंग हुआ है कि नहीं, ये हम चेक करेंगे. द क्वेश्चन इज योग्य स्तंभेषु शब्दान लिखत. स्तंभ मतलब कॉलम्स, योग्य मतलब अप्रोप्रिएट कॉलम्स, एंड शब्द मतलब वर्ड्स, लिखत मतलब राइट डाउन. सो राइट डाउन वर्ड्स इन अप्रोप्रिएट कॉलम. नीचे आपको बहुत सारे वर्ड्स दिए हुए हैं, वो आपको एकदम अप्रोप्रिएट कॉलम में लिखने हैं. बस मैं आपको छोटा सा हिंट दूंगी. सह जो है आपको याद करना है, सह कौन से जेंडर में यूज करना होता है, और वही जेंडर के सब वर्ड्स आपको पहले कॉलम में लिखने हैं. सा कौन से जेंडर के लिए वो याद करो, अपना नोटबुक एक बार गो थ्रू करो एंड राइट डाउन ऑल द वर्ड्स रिलेटेड टू सा इन द सेकेंड कॉलम. एंड तत् कौन से जेंडर के लिए यूज करना है और वो वर्ड्स कैसे दिखते हैं वो याद करो, एंड देन राइट डाउन ऑल द वर्ड्स इन तत् का कॉलम. तो आई विल नॉट टेल एट ऑल सह, सा एंड तत् ये कौन से लिंग है या जेंडर है. यू हैव टू फाइंड इट. फाइंड आउट इट. यू हैव 10 seconds टू सॉल्व इट. एक एक कॉलम सॉल्व करो. पहला कॉलम हो गया तो रेज योर हैंड. सह वाला कॉलम पहला रीड करेंगे. सेकेंड कॉलम हो गया तो रेज योर हैंड.
and then third column. So first write down your answers. पहला कॉलम हम अथर्व को रीड करने के लिए दे देंगे because I think अथर्व is done with the writing of सह. अथर्व, be ready with your answers of सह, column सह. नीचे जो वर्ड्स दिए हुए उनको अच्छे से रीड करो. अश्वः, वृद्धा, पर्णम, वृक्षः, एषः, पेटिका, गगनम, हस्तः, सा, चषकः, कूपी, वनम, पात्रम, नदी, यानम, एषा, उदरम, स्थालिका, फलम. मीनिंग याद आ रहे तो वेल एंड गुड. मीनिंग याद नहीं भी आ रहे बट एंडिंग्स पता है तो भी आप इजीली एप्रोप्रिएट कॉलम में जो वर्ड लिखना है वो लिख सकते हो. यू कैन इजीली place the word in appropriate column using endings. Chalo, let's give chance to Atharva. Yes, Atharva. Yes, ma'am. Ma'am, I am audible? Yes, you are audible. Read the first column. Sah में कौन-कौन से words हैं? Ma'am, अश्वः, then वृक्षः, then एषः, then हस्तः, चषकः. Ma'am, done. Okay, very good. So all Thank these you, ma'am. words are of which linga? Yes, Hitesh. Hello, ma'am. हेलो हितेश. अभी अभी जो वर्ड्स सह के कॉलम में बताए गए वो कौन से लिंग के हैं? Hello, ma'am. Yes, Hitesh. Ma'am, Pullingam. Very good. Pullingam. Now, can you tell me the second column, sa? Yes, ma'am. Vruddha, Read it. Vruddha, Petika, Sa, Nadi, Esha, Sthalika. Done, ma'am. Very good. Thank you. अभी सिर्फ इसमें एक वर्ड मिसिंग है, that is कूपी. The word is कूपी. So students, by now you know the second column is of स्त्रीलिंगम. स्त्रीलिंगम में there are two types of words ending in a as well as e. And the remaining words are of नपुंसकलिंगम. तो हमें वो रीड करने की जरूरत नहीं है. All the words ending in halantama are entitled as napunsakalingam words, and they you have to write down all that words in the last column of tat. तो देखो एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे टाइटल्स दिए हुए रहेंगे, सह, सा, तत्. वो सामने से नहीं बोलेंगे कि ये पुल्लिंगम है, स्त्रीलिंगम है और ये नपुंसकलिंगम है. आपको आपका नॉलेज यूज करना है एंड यू हैव टू राइट डाउन ऑल द वर्ड्स करेक्टली, लिस्ट आउट ऑल द वर्ड्स करेक्टली. एक बार अपने आंसर्स चेक कर लो एंड देन विल मूव अहेड. और एक लास्ट क्वेश्चन हमें करना है, आफ्टर दैट विल स्टॉप. Okay, so again the question is same. Now I want this time ki remaining one should answer the question. So except Priyal, अथर्व, हितेश, ये तीनों को छोड़कर बाकी सबको आंसर्स देने हैं. ये श्रेया फ्रॉम घाटकोपर. Yes, Answer ma'am. for the first. Yes, Shreya. Answer for the first column, Sah. Chandrah, Ashvah, and Vruddhah. Very good. Thank you so much, Shreya. Thank you, ma'am. Chalo, now we want next volunteer for Sa. स्त्रीलिंगी word Sa. चलो यार बहुत easy है. Just try once. बाकी सबको संस्कृत का एग्जाम देना है कि नहीं देना है? Quickly raise your hands and answer. संस्कृति, रिया, महक. I want you all to participate. Kevin, try to answer the question.
Unmute yourself, everyone. Rushil, Kevin. एक बार ट्राई करो एटलीस्ट, मिस्टेक होगा तो भी नो प्रॉब्लम. Yes, many of you are answering in chat box. No problem. Yes, Rushil. Teacher, Hmm. Rushil, unmute yourself. Okay, let's give chance to Krishna. Ma'am, Savan, no? Yes, Sa. Lata, Padraksha, Hmm. Shatika, Petika. Very good. Thank you so much. Thank you, ma'am. तो सिंपली अगर हमें दो कॉलम्स के आंसर पता चल गए तो लास्ट कॉलम इज वेरी सिंपल. लास्ट कॉलम में वी हैव टू यूज ऑल द वर्ड्स एंडिंग इन म. ओके रुशिल, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके. सो हमें लास्ट कॉलम में लिखना है पत्रम, विमानम एंड गृहम. पत्रम, विमानम एंड गृहम. ओके, फर्स्ट कॉलम में था चंद्रः, अश्वः, वृद्धः. सेकेंड कॉलम में था लता, पादरक्षा, शाटिका, पेटिका. एंड लास्ट कॉलम में है अश्वः, लास्ट कॉलम में है दुग्धम, पत्रम, विमानम, गृहम. नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो न्यू वर्ड्स है आपके लिए. चंद्रः इज यू नो मून. सेम वर्ड हम मराठी में भी यूज करते हैं, चंद्र. संस्कृत में चंद्रः, मून. पादरक्षा is new word for you. Padaraksha is sandals, shoes or sandals. Pada is leg, raksha is the one who protects your legs, that is shoes or sandals. Padaraksha. Shatika is sari. सारी को हम बोलेंगे शाटिका. पेटिका is box. And वृद्धः is old man. Vruddha is old lady. Vruddha is old man. Vruddha is old lady. Lata is creeper. Lata is creeper. Okay students, so we'll stop here and we'll continue for the next lecture. यहाँ पे second lesson almost खत्म हो जाता है, बस एक story हमें complete करनी है. We'll complete it next time. Till then, thank you so much and पुनर्मिलामः. Lata means creeper. Okay, bye bye students. Take care and stay tuned.